Absorbance is proportional to A, B and C. A absorbance A is wavelength of light passed. B is the length of pathway and C is the concentration of color or concentration of color or concentration of substance under strain. Now you see the length of the pathway is constant, the wavelength is constant for a particular set of experiment. So these two are constant. So ultimately our formula will come to A is proportional to the concentration and of the solution. This is simple Beer's law. So simple Beer's law को मैं आपको हिंदी में समझा दूँ कि Beer's law के अनुसार किसी भी कलर्ड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन से जब हम लाइट पास करते हैं तो उस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में जो आपका एब्जॉर्बेंस है वो आपका कलर का डायरेक्ट आपका कॉन्सेंट्रेट कलर की डेप्थ के डायरेक्ट समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे आप ठीक तो एब्जॉर्बेंस proportional to the concentration of color and ultimately absorbance is proportional to the color and concentration of substance. This is Beer's law. Now ultimately it has been observed when we perform calorimetric or spectrophotometric estimation, and sometimes it happens if the reading is very less or the concentration is very high, at higher concentration or at very lower concentration, Beer's law doesn't follow very rightly. Then what to do? After performing thousands and lakhs of experiments on calorimeter and photospectrometer, it has been found that Beer's law follows within certain limits. There is a limit to follow the Beer's law. If you are reading in galvanometer starting from 0 to 1.8 or 2 absorption, if absorption of light reading from minimum to maximum remains at this point, the Beer's law will follow. Suppose कीजिए कि if the absorption of light is very less here, the Beer's will not follow, and if absorption is
is carried out under this range, that is about 0.3 to 0.6. 0.3 टू 0.6 तक की रीडिंग पर अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट को सेट करके रीडिंग लेते हैं तो बीयर्स लॉ फॉलो करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट फॉलो। कहने का मतलब ये है कि लीनियरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, लीनियरिटी ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए 100 मिलीग्राम की रीडिंग अगर 0.2 थी तो 200 मिलीग्राम की रीडिंग 0.4 आना चाहिए, और इसके बाद में आपका 400 मिलीग्राम की रीडिंग जो है ना 0.8 आना चाहिए। पर इट नेवर हैपन्स, अगर आपने 400 मिलीग्राम के ऊपर रीडिंग ली और वो रीडिंग मतलब 0.8 के बाद में चली गई तो योर कंसंट्रेशन वैल्यू विल नॉट बी ओके, बिकॉज इट विल नॉट फॉलो बीयर्स लॉ। बीयर्स लॉ का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे कलर का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और उस हिसाब से रीडिंग भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं लीनियरिटी ऑफ द लॉ। लीनियरिटी ऑफ द लॉ 1 इक्वल टू 2 डबल हो जाएगा, इक्वल टू 3 टाइम्स हो जाएगा, और 4 टाइम्स। पर समटाइम्स ये होता है कि एक कंसंट्रेशन की जो रीडिंग है अगर वो 0.1 है तो 4 कंसंट्रेशन की रीडिंग 0.4 आना चाहिए, जो कि 0.4 ना होकर के 3.5 और 3.8 रहती है। और इस कारण से जो है ना आपका लीनियरिटी डिस्टर्ब होने से बीयर्स लॉ फेल हो जाता है। इसलिए हम ये कोशिश करें इन बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी में कि अवर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी राउंड अबाउट 0.25 टू 0.35 के बीच में रखें, ताकि बीयर्स लॉ की लीनियरिटी फॉलो होती रहे। सो बीयर्स लॉ सिंपली से एज आई टोल्ड यू, और लिम्बर्ट लॉ जो है ना, इट इज द लॉ to follow the proper linearity of the Beer's law. Beer's law is the limitation for the Limbert law is the limitation for the Beer's law. Limbert told that within certain limit of optical density or absorbance, Beer's law stand corrects. Behind that limit, Beer's law doesn't follow. Therefore, for proper 0.2 से 3.5 के बीच में रीडिंग यदि आती है तो नॉर्मल है। हाँ। और यदि बट मान लो कि यदि इसकी रीडिंग 3.8 अगर आ गई, 3.8 या उससे ऊपर चली गई तो फिर वो उसका जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर अपन इसको एंड करते हैं। हो गया? हाँ, हो। थोड़ा सा अपन सुनो। Let's conclude today's lecture. First and foremost point, we discussed about calorimeter. And calorimeter means measurement of color, and measurement of color we required a source of light, and the source of light under defined spectra. As you know, the spectrum contains 7 colors, and 7 colors of light have different 7 types of wavelength. So as you know that the light travels in the wave not in a straight form. So wavelength is the characteristic of particular spectrum of light, and the measurement of light in the form of absorption or transmission. The correlation between absorption and transmission is inversely proportional. As the absorption increases, transmission decreases. When absorption decreases, transmission increases. So there is an inverse relation, that is A is proportional to 1/T.
and the absorption, in other words, we may also call it optical density. The formula for optical density is absorption equal to minus log 2. OP optical density is equal to minus log 2. Means 100% ट्रांसमिशन और 100% एब्जॉर्प्शन के लिए ट्रांसमिशन कितना होगा, माइनस लॉग 2. This is all about the calorimetric estimation. And after this, so what are the different parts of calorimeter? Here you see in the laboratory, I will let you know the instrument. There, first of all, source of light. Second, spectrum. Of light, that is wavelength or color filter. Then third point is photo cell. Photo cell means light is converted into equal amount of color, equivalent amount of light, and ultimately voltmeter for reading of absorbed light or transmission. कैलोरीमीटर में जो आपका वोल्टामीटर होता है, गैल्वानीमीटर होता है, इसमें दो तरह के स्केल होते हैं. एक स्केल एब्जॉर्बेंस का होता है, एक स्केल आपका ट्रांसमिशन का होता है. इसको भी हम आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा बोर्ड पर कि दिस इज द पॉइंटर एंड दिस इज अवर स्केल. जब लोअर स्केल जो है ना वो ओडी का होता है, तो ओडी जो है ना यहाँ से चलेगा 0 से लेकर के 0.3, 0.6, 0.8 और अल्टीमेटली 2. दिस इज ओडी. देन यहाँ पे जो स्केल होगा वो तो देयरफॉर 0.2 से लेकर 0 तक का ये स्केल ओडी का है, और ये वाला जो स्केल है ये स्केल ये जस्ट उल्टा चलेगा. तो यहाँ पर आपका ट्रांसमिशन 0 होगा और इसके बाद में ट्रांसमिशन आपका 0 के बाद में आपका 10, 20,
60, 80, 90 एंड दिस इज 100%। तो ये जो ट्रांसमिशन है और ये जो आपका एब्जॉर्प्शन है, या आप इस स्केल पे देखेंगे एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ से अपन रीडिंग लेंगे तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी 0 है तो ट्रांसमिशन कितना है 100। ऑप्टिकल डेंसिटी ये स्केल का है ओडी का ऑप्टिकल डेंसिटी का स्केल है। तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी 0 है तो लाइट का ट्रांसमिशन कितना है 100। मतलब क्या हुआ, जो लाइट सॉल्यूशन में दी है वो पूरी की पूरी बाहर निकल रही है। ठीक, अब अगर सपोज कीजिए कि आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी 0.8 है तो मतलब 0.8 लाइट एब्जॉर्ब हो गई है तो उसका ट्रांसमिशन घट जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन 10 है और मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी किसी कोई भी सॉल्यूशन की कितनी हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अपना फार्मूला क्या है, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू -log2 -log2। तो 2 से ज़्यादा तो ओडी हो ही नहीं सकती। तो इस टाइप से आपका जो कैलोरीमीटर है या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें जो है ना इस टाइप का आपका कलर का मेजरमेंट रहता है। तो कैलोरीमीट्रिक मेजरमेंट और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेजरमेंट में आपके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 सोर्स ऑफ लाइट, नंबर 2 टू क्रिएट द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बाय वे ऑफ फिल्टर और प्रिज्म, नंबर 3 देयर इज ए टेस्ट ट्यूब जिसको अपन क्यूबेट बोलते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में अपना सॉल्यूशन रहता है और इस सॉल्यूशन के थ्रू लाइट जो है सबसे पहले फिल्टर के द्वारा पास होती है या स्पेक्ट्रम के द्वारा पास होती है। तो जिस टाइप का स्पेक्ट्रम या फिल्टर हम रखते हैं उसमें से उसी कलर की लाइट बाहर निकलती है, बाकी कलर सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्लू कलर का फिल्टर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको ब्लू कलर क्यों दिखता है, क्योंकि पूरी दूसरे कलर सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, केवल ब्लू कलर की लाइट आपके आँख तक आती है और आपको ब्लू कलर दिखता है। तो इस तरह से हम जो है पर्टिकुलर कलर का स्पेक्ट्रम की लाइट को ही पास करते हैं और ये पर्टिकुलर कलर की लाइट जो है ना काहे में जाती है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में फिर वो बियर्स और लिम्बर्स लॉ के हिसाब से या तो कुछ अमाउंट उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, बचा हुआ अमाउंट बाहर निकल जाएगा। जो लाइट बाहर निकलेगी वो उस लाइट को अपन काय पे डालेंगे, उसको हम डालेंगे फोटो सेल पे। तो फोटो सेल क्या करेगा, फोटो सेल विल कन्वर्ट द लाइट इनटू करंट। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा करंट वो जनरेट करेगा, जितनी कम इंटेंसिटी होगी उतना कम करंट वो जनरेट करेगा। तो वो जो करंट जनरेट करेगा उस करंट को हम इस गैल्वेनोमीटर पर आपका मतलब मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है कलर ऑफ द सॉल्यूशन। कलर ऑफ द सॉल्यूशन काय पे निर्भर करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है, सो ग्लूकोज की मात्रा मतलब कम है तो कलर कम आएगा, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो कलर ज़्यादा आएगा। अब कलर अगर कम है तो लाइट का एब्जॉर्बेंस कम रहेगा। कम कलर है तो लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जैसे जैसे कलर की डेप्थ, गहराई, कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन भी उसका बढ़ेगा। तो इस तरह से ऑप्टिकल डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द concentration of the color and concentration of the color is proportional to the concentration of the substance under study. For example, अगर हम ग्लूकोज की ब्लड में स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ब्लड को प्रोसेस कर लेंगे और ब्लड को प्रोसेस करने के बाद में अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा, एक कलर मिलेगा और उस कलर को हम कैलोरीमीटर में मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ कलर इज डन इन कैलोरीमीटर। तो आई थिंक टुडे यू कम अक्रॉस व्हाट इज कैलोरीमीटर
on what principle it works and what are the limitations of the principle and how to calculate the concentration of substance under study. The formula I told you, that absorbance or optical density of the test upon the optical density of standard solution prepared in the laboratory into the factor equal to the milligram percent of the concentration of any solution. So at this point I would like to conclude my lecture. My lecture was on calorimeter and spectrophotometer. In this lecture I correlated what is calorimeter and what are the different parts of calorimeter, then what is the procedure, what is the principle on which the calorimeter works, and what are the calculating factor for study of different biochemical ingredients under study in the lab. Thank you.